Good morning. Today I am going to show how to draw a face. So let's start. I have taken eraser, paper is ready and pencil I have taken normal writing pencil. Let's start. First of all, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में बीच में करेंगे. For making the line you can fold just this paper like this and make 2 marks, and then with the help of another paper, if you are not having scale, normally we don't take a scale for in drawing, so just make one line, straight line like this, and I will use this paper for, इसको यूज़ करेंगे हम लोग स्केल के रूप में. इसको फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा स्केल जैसा यूज़ करेंगे. अब क्या है कि एक फेस यहाँ बनाना है. सो फर्स्ट यू मेक हियर वन डॉट so that here chin line will come, and here last of the head here. Okay, then make one oval like an egg, जैसे एक अंडा होता है उस टाइप का शेप का एक ओवल बना देना है. If you are in higher class and know about symmetry, you have to see that this line will help like a line of symmetry. In line of symmetry means a line which divides a single part into two equal parts and same in every way. So here I have made one oval. Now what I have to do, assume that this here eyes will come, so I will make one line, and this is called eyes line. This is called eyes line. Here next is thing will be nose, so here I will make one point, and passing through this point I will make one line like this. This will be eye line, this is eyes line, and this is nose line. नेक्स्ट आई विल मेक द लिप लाइन, जहाँ से लिप्स मेरा दिखेगा, तो यहाँ पर दिस विल बी लिप लाइन. ओके, सो 2-3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हियर. कुछ चीज़ ज़रूरी है कि हम लोग ये जो लाइन बनाते हैं तो आइज़ इस लाइन पे आएगा, लेकिन दो आइज़ के बीच का डिस्टेंस, एक आइज़ अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वही लेंथ लगभग यहाँ पे छूटेगा. वन दिस लेंथ एंड बिटवीन द टू आइज द लेंथ विल बी इक्वल. दैट मीन्स लीविंग फ्रॉम हियर वी विल डिवाइड दिस पार्ट in 3 equal parts, and in 2 equal parts here eyes will come. Okay, just making now the simple diagram, and this part and this part is, both the parts are equal and this part is also equal. Okay, next we will make the eyebrow will go higher, so nose यहाँ से start होगा, here यहाँ से start करके ये eyebrow हो गया, ये ऐसे इसको eyebrow हो जाएगा. It depends upon the person whose picture you are drawing, but for simple practice we will do like this. And this is nose line. So here what we will do, how to make the nose. For making nose, 2-3 things we can do. Make one circle here and small circles here like this. Okay, and now join this line in this way till here, and this will be till here, and here what we will do, we will make little curve like this. अब क्या करेंगे, ये जो है इसको ऐसे कर लेंगे, इसको इधर से घुमा लेंगे, अब बीच का जो लाइन बनाया उसको इरेज कर देंगे. दिस मिडिल लाइन ऑल्सो विल बी इरेज्ड एंड दिस साइड लाइन ऑल्सो विल बी इरेज्ड, and we will get the shape of the nose. So next here I have told that lips line. For the lips line what we are going to do, here we are going to make here one V shape like this, and like a bow, धनुष की तरह एक शेप बनाएंगे ऐसे. ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा यू टाइप का, हल्का सा यू, और ऐसे और ऐसे. ओके, देन वी विल मेक like this little bit downside curve and join like this. Here we are also going to join like this. Okay, if you want to face see so the face is smiling, this will be little bit curve like this. तो थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा कर्व कर लेते हैं. ये हो गया. आइज़ में क्या करना है, आइज़ के लिए ये है, तो पहले इसके अंदर का ये लाइन मिटा देंगे. अब
क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट से हियर वी विल मेक कर्व लाइक दिस, फर्स्ट कर्व, एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे शेप करके ये यहाँ जाके मिल जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ जाके मिलेगा। एकदम सेम उसी तरह का यहाँ भी बनाना है, तो उसी तरह का यहाँ बनाएंगे लाइक दिस, एंड हियर ऑल्सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड गो टू हियर। वी हैव टू सी दैट सिमिट्री अगर पढ़े हो क्लास 5 में शायद सोल्व हो जाता है मैथ्स में। सिमिट्री का मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों तरफ बराबर से, जैसे ए लिखते हैं हम लोग, व्हेन वी राइट ए, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमिट्री। अगर बी लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमिट्री, ठीक ना। तो इसमें क्या है, ये जो मिडिल से लाइन की है, दिस इज लाइन ऑफ सिमिट्री, ओके। तो वो मिडिल ऑफ लाइन को लाइन ऑफ सिमिट्री मान करके ये देखना है कि दोनों आईज एक जैसा हो रहा है कि नहीं, सेम पोजीशन में। इसके बाद यहाँ पे आईब्रो, ओके। इधर होते होते दोनों साइड से लाइंस बनेगा, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो। लाइक दिस। यहाँ भी वही करेंगे। लाइक दिस वी विल मेक, ये कर लिया। उसके बाद आइज, इसमें आइज का ये पलक बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड आईलिड, ये ऐसे। अब डिपेंड करता है किसका बना रहा है पिक्चर, तो उसके हिसाब से चेंज होगा, लेकिन एक नॉर्मल एक फिगर में ऐसे आईलिड दिखा देंगे। और यहाँ पे एक हल्का सा लाइन जाएगा जो कि यहाँ तक में ख़त्म हो जाएगा, वो लाइन। ये लाइन बल्कि नहीं है, बल्कि ये शेडिंग में केवल होगा, दिखेगा, इट विल एंड टिल हियर। ये भी लाइन डार्क नहीं करेंगे, इसको शेडिंग में ही करेंगे। अब ये हो गया। इसमें अब आई बॉल देखना पड़ता है कि कितना ये आईलिड का नीचे वाला का थिकनेस। अब ये थिकनेस, ये लाइन दिखना जरूरी है, थिकनेस, दिस थिकनेस। यानी यहाँ पे पूरा गोल नहीं करेंगे, पूरा गोल करने से क्या हो जाएगा कि लगेगा कि पूरा आँख खोल के फाड़ के देखना, वैसा नहीं। ये दिस विल लिटिल मोर देन सेमी सर्कल, ओके। एंड डिपेंड्स अपॉन द आइज। अब किसका बना रहे हैं, किसी का आँख एकदम पतला हो, जैसे चाइनीज़ रहता है, नेपाली लोग रहते हैं, तो उन लोग का आइज पतला रहता है, तो उसमें बहुत कम पार्ट दिखता है। हम लोग गौतम बुद्ध का जब पिक्चर बनाएंगे तो उसमें बहुत पतला सा आइज का पार्ट दिखेगा। अब ये ऐसा हो गया। अब इसमें लिप्स भी मेरा बन गया, आइज भी बन गया। अब इस लाइन का अब इम्पोर्टेंस नहीं है। देन वी विल रब दिस लाइन, इस लाइन को रब करेंगे। जितना भी हेल्प के लिए लाइन्स लिए थे, ऑल द लिप लाइन, नोज लाइन, एवरीथिंग वी विल रब। बट वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल, व्हेन वी आर स्केचिंग ईयर्स, दिस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम दिस आईज लाइन, यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड इट विल गो टिल हियर नोज लाइन। नोज लाइन के सीधा में, वो अपना भी अगर नाप करके देखेंगे तो लगभग वैसा ही रहता है। किसी का कभी कभी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग ऐसे ही शेप रहता है। इस लाइन से यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया नोज़ लाइन पे। मतलब नोज़ का और ईयर लॉब का दोनों का लेंथ एक लाइन में आता है। ये आइज़ का और ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईयर विल कम इन सेम लाइन। अब यहाँ पे ऐसे होगा, ये पार्ट ऐसे थोड़ा सा, और यहाँ पे इस तरह का शेप जो कि शेडिंग में हम लोग करके दिखाएंगे। इसी तरह इधर का भी ईयर्स बना सकते हैं। अब ये फ्रंट पिक्चर है इसलिए ऐसा दिख रहा है, अगर साइड पिक्चर रहेगा तो एक ईयर दिखेगा, हो सकता है एक ईयर का थोड़ा सा पार्ट दिखे, बट इन फ्रंट पिक्चर नॉर्मली दिस थिंग हैपेंस। ये ऐसे बना लिए। अब ये चूँकि पिक्चर जो है गर्ल का है, तो इसमें ईयरिंग बनाना है तो बना लेंगे। तो इसको थोड़ा सा चेंज करने से गर्ल का लुक आ जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। अब हेयर स्टाइल, अब देखना है कि फोरहेड का कितना पार्ट, इतना दूर फोरहेड लेंगे तो हेयर को थोड़ा सा ऊपर कहीं कहीं करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पिक्चर। सो यहाँ पर हम लोग
यहाँ से हेयर को स्टार्ट करते हैं और जो पिक्चर दिखाए हैं बना रहे हैं वो उसके हिसाब से ऐसे होगा। ये कर्व ध्यान देना, इधर से भी सिमेट्रिक लगभग होगा, ठीक ना। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब जो बाल बनेगा ये लाइन से, ये ऊपर से लेके ईयर तक डिप हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी एकदम यहाँ से भी हो सकता है। ये पिक्चर जैसा मेरे पास है जो बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें लगभग यहाँ तक हम करते हैं। अब हेयर स्टाइल जो है वो कैसे है वो देखना होगा। ये लगभग सीधा सीधा ही ऐसे करके है तो उसको कर लेंगे, ये बाद में बनाएंगे। अब नीचे और क्या करना है, सबसे पहले तो बाकी एक्स्ट्रा लाइन से उसको इरेज कर देते हैं। ये ऐसा कब शुरू करेंगे जबकि हमारा फ़ोटो जो लिए हैं बनाने के लिए वो फ्रंट पिक्चर हो, एकदम फ्रंट टू फ्रंट, तभी इस टाइप का आइडिया को लगाएंगे। साइड पिक्चर के लिए दूसरे तरह से फिर करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिखा देंगे तो ये चिन जो रहता है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है आगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर दबा देंगे तो और अच्छा लगेगा। दिस विल कम लाइक दिस, देन इट विल लुक मोर बेटर। इधर से भी थोड़ा सा। अब ये पिक्चर डिपेंड करता है किसका पिक्चर, उसमें अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, अगर है तो करेंगे, नहीं तो ऐसे सिंपल भी रहने देंगे, चलेगा। अब इसमें शेडिंग करना है, उसके पहले थोड़ा सा साड़ी का जो लुक है उसको भी कर लेते हैं। साड़ी है, सूट है। अब कुछ चीज़ अभी हम बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ऐसे है, अब यहाँ शूट है, यहाँ से स्टार्ट है, इट विल गो लाइक दिस। ये रफली बना देंगे, इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलाना कोई ये नहीं है, लेकिन ये कंधा नीचे ज़्यादा नहीं आ जाए, ध्यान रखना है। ये हो गया। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट। Now I will show you how to shade it and some more important thing what we have to keep in mind while completing this picture। ये लड़की का लुक बन गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, जब ये लाइन यहाँ ये पॉइंट है वो ऑलवेज विल मैच विथ दिस, नोज़ का किनारे का पार्ट से ये आइज़ का पार्ट मैच करेगा, वो हमेशा एक सीधा में रहेगा अगर फ्रंट पिक्चर है तब। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये किनारे का इस आइज़ से लाइन अगर सीधा ड्रॉ करते हैं तो ये गर्दन का थिकनेस लगभग आता है अप्रॉक्स, ठीक ना। एकदम एग्जैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है किसी का गर्दन बहुत पतला हो, किसी का बहुत मोटा है। ये देखो यहाँ तक आएगा, तो गर्दन जब बनाएंगे तो ये यहाँ से एक सीधा लाइन करेंगे हल्का सा, फिर यहाँ से डार्क कर लेंगे, यहाँ से सीधा लाइन यहाँ से डार्क कर लेंगे। तो ये रूल है कि वैसा हो गई। आइज़ का लाइन पता चला, कान और आइज़ एक लाइन में होता है। ये नोज़ का टिप और ये आई ईयर का ईयर लॉब दोनों एक सीधा में होता है। लिप लाइन जो होता है वो यहाँ से लगभग क्रॉस करता है, देखो, ठीक ना। ये स्क्वायर शेप लगभग हो गया। तब ये पहले आप ये सबको मिटा देंगे, इसके बाद इसमें शेडिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले फेस में करेंगे और आइज़ में हल्का हल्का थोड़ा सा इरेज कर लेंगे तो कि जो एक्स्ट्रा लाइन से वो मिट जाए। अब हम लोग को केयरफुली ध्यान देके करना है ये पार्ट। पहले आइज़ से शुरू करते हैं। आइज़ में एक जब भी फ़ोटो होता है तो यहाँ पे एक वाइट ड्रॉप दिखता है तो उसको पहले ही वाइट छोड़ देंगे, अगल बगल उसको कलर करेंगे। दिस पार्ट इज़ मोर डार्क और किनारे का पार्ट डार्क रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से हर तरफ से थोड़ा थोड़ा लाइन से अंदर की तरफ जाता है। इसमें जब डिटेल आइज़ का स्केच करेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि किनारे किनारे थोड़ा डार्क रहेगा, बीच में तरफ थोड़ा लाइट हो जाएगा। और
क्योंकि इसमें लाइट एक साइड से फॉल हो रहा है, इसलिए बीच में यहाँ आई ड्रॉप दिखेगा। कहीं कहीं जब खिड़की से कहीं से लाइट पड़ रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप थोड़ा सा बन जाता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, खिड़की का जो इमेज रहता है वो आइज़ में दिखता है, तो वैसा भी कर सकते हैं। जब डिटेल्ड आइज़ का स्केचिंग करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि कैसे होगा। ये इस तरह भी थोड़ा थोड़ा लाइट कर सकते हैं, किनारे में जाते जाते थोड़ा लाइट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा अब। लेकिन ये पार्ट करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, करने के लिए इस पेंसिल से, नॉर्मल राइटिंग पेंसिल से कर सकते हैं, ठीक ना। दिस इज HB पेंसिल विच आर यूज्ड फॉर राइटिंग, बट आई विल शो यू नाउ which all pencils can be used for this. So here you can see some pencils I am telling. Here you can see this is 6B pencil. ये 6B pencil है एक 6B. Then here it is 8B also I have taken, 8B, 2B and 4B, 2B, 4B, 8B. अब इसमें अंतर क्या होता है? अब इसमें हम लोग टिप पेंसिल का देखते हैं, तो जो 2B रहेगा उसका थिकनेस, लीड का थिकनेस जो कार्बन रहता है उसका थिकनेस कम रहता है, ठीक ना, और डार्क रहेगा। लेकिन 4B जितना नहीं, 4B जितना डार्क रहेगा उससे कम डार्क रहेगा। नॉर्मल पेंसिल जो होता है उससे, उसके से थोड़ा सा डार्क इससे कर सकते हैं, और थिकनेस भी नॉर्मल पेंसिल जितना रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 4B तरफ बढ़ेंगे तो 4B का क्या हो जाता है, यार आई हैव 4B पेंसिल, तो ये 4B में क्या होगा, यहाँ नीचे में लिखा होता है, जहाँ HB लिखा रहता है वहीं पे 4B लिखा रहता है। ये अप्सरा का ड्राइंग पेंसिल है, तो 4B में लीड का थिकनेस थोड़ा बढ़ जाता है और डार्कनेस भी थोड़ा बढ़ जाए, इससे सॉफ्टली भी करेंगे तो डार्क लाइन बनेगा। नेक्स्ट इट कम्स 6B, 4B के बाद 6B, दो दो नंबर का रहता है, 2B, 4B, 6B, 10B, 8B, 12B तक भी रहता है। तो यहाँ पे ये 4B पेंसिल है ना, दिस इज 8B, दिस इज 6B। 6B में इसका थिकनेस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, अंदर का लीड का थिकनेस बढ़ जाएगा, और डार्क भी बहुत आराम से भी करेंगे तो अच्छा खासा डार्क लाइन बनेगा, ठीक ना। ये 8B है, 8B से बहुत ज़्यादा, जैसे कलर पेंसिल से करते हैं, कलर्ड पेंसिल से उस तरह का डार्क लाइन बनेगा। तो हम लोग ये शेडिंग जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले 2B यूज़ करते हैं, फिर 4B, फिर 6B, फिर 8B। 8B तभी यूज़ करते हैं जब जहाँ पर हमको बहुत डार्क करना हो, जैसे हम लोग आइज़ में भी डार्क करना चाह रहे थे, इसीलिए हमको याद आया कि मुझे याद आया कि इसको हम लोग 8B से करेंगे तो तुरंत डार्क हो जाएगा। अब ये लाइन सब पहले मिटा दें, जो राइटिंग वर्क है, आई विल रब इट। अब इसमें शेडिंग कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। तो हम पहले 2B से नहीं करेंगे, 4B से कर देंगे। 2B का इफेक्ट नॉर्मल राइटिंग पेंसिल से आ जाएगा, तो इसीलिए 4B यूज़ कर रहे हैं। 4B, 6B एंड 8B आई विल यूज़। ओके, 3 पेंसिल्स आई हैव टेकन। इसको 4B से पहले करते हैं, तो क्या होता है कि ये आइज़ लिड जहाँ रहता है उसके बाद का ये एरिया थोड़ा डार्क रहता है, तो इसको सॉफ्टली इस तरह से करेंगे, एकदम हड़बड़ नहीं करना है, एकदम सॉफ्टली ऐसे करते जाएंगे। और ये पार्ट थोड़ा लाइट होगा, ये पार्ट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा, क्यों कि यहाँ पे गहरा रहता है, ठीक ना, नोज़ ऊपर रहता है, बल्ज किया हुआ रहता है, ये पार्ट अंदर रहता है थोड़ा, तो वहाँ पे डार्कनेस फेस में कहाँ दिखेगा, जहाँ पे या तो डार्क रहेगा कलर, ठीक है, कलर कॉम्प्लेक्स में जैसे ये बाल का कलर यहाँ पर डार्क है, आई बॉल डार्क रहता है, या फिर गहराई रहेगा, तब गहराई दिखाने के लिए हम लोग डार्क पेंसिल यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे डार्क होगा, ये पार्ट भी थोड़ा डार्क होगा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग डार्क शेड कर लेंगे। ओके, फॉर दिस ऑल्सो आई विल शो यू व्हाट अदर थिंग्स वी कैन यूज़ और फिनिशिंग देने के लिए। यू ऑलवेज डू इन दैट वे। एंड अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको आई ब्रो बनाना है। आई ब्रो में भी थोड़ा सा ये पेंसिल से, डार्क पेंसिल, देखो ये 6B का इफेक्ट है, थोड़ा सा सॉफ्टली ही कर रहे हैं लेकिन अच्छा खासा डार्क कलर हो जा रहा है। अब इसी तरह इधर का आइज को कर लेंगे, इसमें भी पहले 2B से करते हैं। अब ये नोज़ को हम लोग ये लाइन कर नहीं करेंगे, लाइन के बदले क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे।
यहाँ से इसको ऊंचा दिखाने के लिए बीच में लाइट, किनारे किनारे डार्क, थोड़ा इस तरह शेड कर लेंगे। नेवर मेक लाइन फॉर नोज। इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे, इधर से भी थोड़ा डार्क करेंगे। अब ये जो हो रहा है इसको हैंड से भी इस तरह मिक्स करते हैं, बट डोंट यूज़ हैंड, यूज़ ऑलवेज यूज़ टिश्यू पेपर और कॉटन, और यू कैन यूज़ ईयरबड फॉर फाइन वर्क। ईयरबड हम यूज़ करके दिखाते हैं, जस्ट वेट। Next video I will show you using the earbud. Here I will show you with the finger how to do. अभी उंगली की यूज़ करके ऐसे करके शेडिंग कर लेंगे। यहाँ पे उंगली में थोड़ा सा कॉटन लेके भी कर सकते हैं, ठीक ना। दिस वे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा, ऐसे करेंगे। और नोज का ये पार्ट को थोड़ा सा एक पतला इरेजर से इरेज कर देंगे, तो नोज पूरा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क करेंगे तो और यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स जो छेदा रहता है नाक में, वो दिखाने के लिए थोड़ा डार्क कर लेंगे। ये भी डिपेंड करता है कि किस एंगल से पिक्चर को देख रहे हैं। अगर हम लोग इस नीचे साइड के एंगल से देखेंगे तो ये नॉस्ट्रिल और थोड़ा गोल गोल दिखेगा। अब ये जो आता है वो यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है, ये लाइन जो है यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है। अब ये इस पार्ट में भी थोड़ा डार्क होगा क्योंकि यहाँ थोड़ा गहरा रहता है। ओके, लाइक दिस। अब हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा गाल को फूला हुआ दिखाने के लिए भी करना होगा, और पहले तो यहाँ कर लेते हैं। ये ऑल्सो आई विल रब लिटिल बिट विथ फिंगर। और जहाँ ज़रूरत हो ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे इरेजर से इरेज भी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग शेडिंग करेंगे, साइड से थोड़ा ज़्यादा ही शेडिंग होगा। दो तीन तरह से शेडिंग होता है। दिस इज स्मजिंग प्रोसेस बोलते हैं। स्मज कलर पेंसिल से यूज़ करके उसका स्मज, हाथ से स्मज करें या कॉटन से या टिश्यू पेपर से ये स्मज करना हुआ। नहीं तो फिर कोई कोई जो ड्राइंग करते हैं उसमें लाइंस लाइंस करके ही कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये हुआ स्मजिंग टेक्निक। किनारे को थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे। इसी तरह सारे सभी साइड से करेंगे। ये बाल है तो बाल के नीचे ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर डार्क रहेगा। अब डिपेंड करता है पिक्चर में कितना डार्कनेस है, ठीक ना। पिक्चर आउटडोर का रहता है, बाहर का खींचा हुआ रहता है, जहाँ पे धूप पड़ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखेगा। बट रिमेंबर दैट डोंट कलर द फुल फोरहेड डार्क। ऐसे ऐसे हल्का हल्का करेंगे, एकदम इजी वर्क है। हल्का हल्का करेंगे, बाकी काम हम लोग का हाथ या कॉटन जो लिए रहेंगे उससे हो जाएगा। अब इस चीज़ से थोड़ा ऐसे रख देंगे। लगेगा कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया तो उसको इरेजर से इरेज करके फिर करेक्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग ये आईब्रो बहुत डार्क किए हैं तो इसको भी थोड़ा डार्कनेस और बढ़ा लेंगे। और भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम लोग इस तरह का पेंसिल शेडिंग करेंगे तो क्योंकि हाथ इस तरह रख के अगर कर रहे हैं तो कलर जो है उसका हाथ में इस जगह में लगेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए, और वो लगेगा तो अगर यहाँ लग गया है फिर यहाँ रखेंगे हाथ तो ये पार्ट भी डार्क हो जाएगा। इसके लिए अब करने के लिए जब हम लोग ऊपर से करना शुरू करते हैं, अब इधर हो चुका है तो इसको इस तरह ढक लेते हैं, उसके बाद इधर करते हैं तो क्या होगा कि हाथ से जो रेस्ट पार्ट है वो रगड़ नहीं खाएगा, जिसके चलते बाकी गंदा नहीं होगा पेपर। ओके, तब जैसे जैसे ज़रूरत होगा उस तरह से खोलेंगे इसको। अब लिप्स करके दिखाते हैं। ये पार्ट हमेशा
डार्क थोड़ा दिखाना है, या जेंट्स का है या लेडीज़ का फिगर है, ये पार्ट को थोड़ा सा डार्क दिखाना है। लेडीज़ में ये पार्ट भी डार्क होगा, जेंट्स में ये पार्ट थोड़ा लाइट रहेगा, क्योंकि लेडीज़ में लिपस्टिक लगा हुआ है अगर है तो थोड़ा डार्क दिखेगा। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में पेंसिल देखो कैसे चला रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि जैसे लिप्स में थोड़ा सा सिकुड़न आता है, रिंकल्स आता है, वो सब दिखाने के लिए ऐसे ऐसे लाइन कर लेंगे। हो गया। ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे गोल कर देंगे अगर, तो स्माइलिंग टाइप फेस दिखेगा। अब ये लिप्स को ज़्यादा डार्क नहीं दिखाना है, अब इसमें इसको थोड़ा सा यहाँ से डार्क दिखाएंगे, हल्का हल्का, इसको थोड़ा सा स्मज कर लेंगे और इसमें भी थोड़ा थोड़ा लाइंस दिखा देंगे। अगर पूरा डार्क दिखाना दैट मीन्स ऑन द लिप्स लिपस्टिक इज देयर, तो पूरा डार्क भी दिखा सकते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा लाइंस दिखा सकते हैं, ठीक ना। ये लाइंस ऐसे इधर से हो जाएगा, और ये लाइन थोड़ा सा और एक डार्क लाइन बनेगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ताकि इसमें भी 3D इफेक्ट है। 3D इफेक्ट करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा शेडिंग दिखाना पड़ता है, लाइक दिस। अब ये चिन बोले थे, चिन नोज के बाद सबसे बाहर निकला हुआ ये चिन रहता है, इस जगह सबसे ऊंचा रहता है, फिर ये पार्ट लिप्स ऊंचा रहता है, फिर यहाँ पे चिन रहता है। चिन ऊंचा दिखाने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा शेडिंग करना होगा। नेक्स्ट वीडियो आई विल यूज earbud for fine mixing, then you will understand what is the importance of earbud while doing। अब क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा डार्क करेंगे, इधर से भी थोड़ा डार्क कर लेंगे। अभी फिक्स्ड है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं तो पेपर को इस तरह घुमा के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी घुमाने से क्या होगा, रिकॉर्डिंग स्टैंड में लगा हुआ कैमरा तो दिक्कत हो जाएगा। देखो ये लुक आ गया थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा इसको लेडीज़ का और अच्छा लुक देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये नोज पिन बना सकते हैं, ओके। और ईयर कट करके देखते हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हल्का सा शेड दे सकते हैं। देखो हाथ में ऑलरेडी लगा हुआ है थोड़ा सा, या कॉटन जो यूज़ किए हैं उसी से ऐसा कर देंगे तो ये पार्ट थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, और ये पार्ट देखो उसके चलते ऊंचा लगने लगा, ओके। और अगर ऊंचा नहीं लग रहा, थोड़ा सा हो सकता है और लग गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी इरेजर यूज़ कर सकते हैं। अब ये पार्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे डार्क होगा, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से लाइट पड़ रहा है चेहरा पर, ये दिखेगा या नहीं दिखेगा। जनरली स्टूडियो में जो फोटोग्राफी हम लोग करवाते हैं तो ये लाइट यहाँ पे उतना अंधेरा नहीं दिखता है, इसलिए वहाँ पर सब डार्क का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे नॉर्मली घर का फोटोग्राफ है तो उसमें ज़रूरत पड़ेगा। कभी कभी ये यहाँ पे लिप्स के नीचे यहाँ पे भी इस तरह का शेडो दिखा सकते हैं। अब ये जनरली डिपेंड्स अपॉन द फेस, पर्सनस फेस, ये फेस कैसा है उस हिसाब से आएगा। अब ये लाइन और डार्क शेड दिखाना तो यहाँ पे ये पार्ट और डार्क हो जाएगा, जैसे हम करके थोड़ा सा दिखाते हैं तो और थोड़ा सा 3D इफेक्ट दिखेगा। ये पार्ट थोड़ा सा और डार्क हो गया, ऐसे करने से गाल जो है और फुला हुआ दिखेगा। दिस पार्ट इज मेड, यहाँ भी थोड़ा डार्क कर लेंगे। आउटलाइन जैसा कुछ नहीं दिखना चाहिए, आउटलाइन के बदले वो वहाँ पर डार्क शेड दिखे, ओके। नाउ मेक द दिस पार्ट, यहाँ पे गर्दन बना रहे हैं क्योंकि यहाँ कपड़ा है तो कपड़ा का शेडो यहाँ बनेगा नेक पे। ये पार्ट भी थोड़ा डार्क हो जाएगा, इधर से उसी तरह डार्क होगा। ये पार्ट कपड़ा का या गर्दन के बीच का पार्ट है तो ये सबसे ज़्यादा डार्क दिखेगा। यहाँ पे भी एक डार्क लाइन कर सकते हैं। अब इसको भी स्मच कर लेंगे पूरा उंगली से, या फिर उंगली में अगर रुई लिए रहेंगे तो और अच्छा है, हाथ भी गंदा नहीं होगा।
अब ये लाइन क्या हो रहा है, इसके साथ मैच कर जाए तो ये आउटलाइन को थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे। सिमिट्री देखना, दोनों तरफ फेस में फ्रंट फेस है इसलिए सिमिट्री ध्यान देना। सिमिट्री मतलब दोनों साइड एक साइड जैसा, एकदम सेम टू सेम। ओके, ये हो गया। अब गर्दन, नेक ये सब बन गया है। थोड़ा सा हम लोग ईयर को करेंगे और हेयर स्टाइल करेंगे। ईयर भी, ये आउटलाइन यहाँ बाल से छुप भी सकता है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है तो हम लोग ईयर को, ये पार्ट डार्क होगा। इससे कर दिए, थोड़ा थोड़ा स्मज कर दिए। उसके बाद जहाँ ज़रूरत होगा थोड़ा सा, अगर लाइट कलर है तो उसको इरेजर से मिटा करके कर लेंगे। अगर लाइट ज़्यादा, जैसे यहाँ पर डार्क डार्क रहेगा, यहाँ पे हम लोग इरेजर से मिटा देंगे तो कैसा हो गया इसका। सिंपल सा पहले बनाते हैं क्योंकि मेन हम लोग को फेस स्टडी, तो ये सिंपली बन गया। अब इसमें डिज़ाइन जो भी बनाना है ऐसे कर लिए, यहाँ भी ऐसे कर लिए, यहाँ छोटा बॉल जोड़ दिया, यहाँ भी उससे छोटा कर लिए। ये डिपेंड करता है कि पिक्चर में अगर है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। आपने से भी कुछ ऐड कर लिए। अब ईयर भी बन गया। अब हेयर स्टाइल में ऐसे ऐसे दोनों साइड से लाइन्स है तो वही लाइन्स करते जाएंगे। लेकिन अब हाथ देखो यहाँ रगड़ा रहा था, इसको क्या करें, पहले ढक देंगे ताकि बाकी पिक्चर जो है ख़राब नहीं हो। अब डिपेंड, पहले हल्का हल्का लाइन किस डायरेक्शन में पेंसिल ले जाना वो लाइन पहले कर लेंगे। जैसे हमको इधर से इस डायरेक्शन में ले जाना तो कुछ लाइन दूर दूर कर लेंगे। और यहाँ पे आ रहा है ऐसे, इस तरह कर्व होके आ रहा है तो वो पहले हल्का लाइन बना लेंगे ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। अब इसको डार्क लाइंस करेंगे। लाइक दिस यू विल मेक। अब ये बाल ऐसा नहीं है कि वाइट वाइट दिख रहा है तो पक गया है, बूढ़ी हो गई है लेडीज़, ये ड्यू टू लाइट इफेक्ट। ओके, बाल में तेल लगा हुआ है, ऐसे भी ग्लेज होता आता है बाल में, शैम्पू लगाने के बाद चमकता है तो चमक के चलते ये पार्ट लाइट दिखेगा। ठीक ना। एक दो इधर ऐसे निकला हुआ भी रहेगा तो अच्छा लगे देखने में। हो गया। यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर भी निकाल सकते हैं। और ये कान के बगल में तो ज़रूर आएगा, ये पार्ट थोड़ा आएगा। ये बाल यहाँ पे ऐसे भी शेप हो सकता है, थोड़ा बहुत निकला हुआ। ठीक ना। नीचे अब कुछ नहीं करेंगे, अब इधर का देख लेते हैं। इधर का भी घुमा के देखते हैं, अगर हो जाएगा तो दिस वे इट विल बी इजी टू मेक। Like this. अभी तक हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, दिस इज 6B। ओके, 4B यूज़ कर रहे हैं, इससे भी डार्क कर सकते हैं। 8B 4B अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी से होगा। नॉर्मल पेंसिल जो आता है, एक पेंसिल है कार्बन ब्लैक, अप्सरा का शायद आता है वो, तो दैट पेंसिल इज गुड इनफ टू डू दिस टाइप ऑफ पेंसिल शेडिंग। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ़ यू आर हैविंग shading pencil then only you can do. Most of the work can be done with the normal writing pencil. अब इतना ही इधर करते हैं। और अगर डार्क दिखाना तो थोड़ा सा इसको ऐसे स्मज कर देंगे। इसमें भी थोड़ा सा हाथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ चमक दिख रहा है वहाँ पे नहीं करेंगे। थोड़ा सा स्मज कर देंगे तो डार्क शेड आ जाएगा। सो इज इट
इट लुकिंग नाइस नाउ। अब बच गया अनइम्पोर्टेंट चीज़ में क्लोथ। तो क्लोथ में ऐसे केवल स्लैंड करके चला देंगे थोड़ा थोड़ा, या फिर रुई जो यूज़ किए हैं उससे भी ऐसे ऐसे रगड़ देंगे तो क्लोथ का लुक आ जाएगा, ठीक है। दिस वे थोड़ा करके उसके बाद इसको भर देंगे। अब ये आउटलाइन बना देंगे अच्छा थोड़ा सा शार्प, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छा सा किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कितना तुम प्रैक्टिस करती है। ऐसा अगर सिंपल आइज़ नोज़, लेकिन इसके इतना करने के पहले आइज़ नोज़ का प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी पर्सनस फेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि किसी का हमेशा पिक्चर लेके ही बनाएंगे। नॉर्मली पिक्चर्स कोई भी एक तो ले लिए, कैलेंडर से कोई फ़ोटो ले लिए, मैगजीन से ले लिए, न्यूज़पेपर से ले लिए, कभी कभी पेंटिंग किया हुआ पिक्चर दिख जाता है, तो उस टाइप का प्रैक्टिस करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम लोग मैंने ऐसा पिक्चर लेंगे जिसमें कि किसी पर्सन का ही हो, जैसे मम्मी का, पापा का, इस तरह कोई ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी पिक्चर लेके बनाएंगे तो हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा बाल निकला हुआ दिखा देंगे तो और नेचुरल दिखेगा। सो दिस वे वी कैन मेक। अब यहाँ पे थोड़ा सा शेडो देंगे आईज में भी, लाइक दिस, तो आई बॉल भी थोड़ा सा गोल गोल दिखेगा। यहीं पे ईयरबड से करना, उंगली से देखो ये पूरा ढक जा रहा है, तो ईयरबड से करेंगे जैसे ये सब पॉइंटेड रहता है तो ये ईजिली मिक्सिंग हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इस तरह हम लोग जैसे आई पलक को इरेज अगर ऊपर से थोड़ा सा कर देंगे तो वहाँ पे और लाइटेड दिखेगा। और ये इसको लिप्स को और आगे दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन करेंगे, उसको बाहर साइड मिक्सिंग कर देंगे। इतना डिटेलिंग में भी तुमको जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको और भी डार्क कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से बनते जाएगा। जितना प्रैक्टिस, जितना समय लगाओगे उतना ही अच्छा होगा। ओके, अंडरस्टूड। यू डू दिस एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड आफ्टर 2 days. Till then you will practice all the eyes, nose, एक one page at least every day. Okay, thank you. So is it looking nice? And you will be able to do this much work if you will practice about 7 days. 7 दिन के बाद अगर आइज नोज सब प्रैक्टिस कर लो कि स्मज करना कुछ नहीं है, ये बहुत ईजिली होगा, ठीक ना। मेन आइज नोज ये सब बन जाएगा, तो ये स्मैजिंग करना, उसके लिए एक और उपाय होता है कि हम लोग क्या करेंगे, इस तरह एक अलग पेपर में, ड्राइंग शीट में नहीं, जिसमें बना रहे उसमें नहीं, दूसरा जगह ऐसे पेंसिल को रगड़ लेंगे, उसके बाद रुई ले लेंगे, रुई को क्या करेंगे ऐसे इसमें ऐसे ऐसे कर लेंगे, उससे इससे भी स्मजिंग इस तरह किया जा सकता है, ठीक ना। अभी तो कॉटन में मैं लेके नहीं बैठा हूँ, लेके आने में देरी हो जाएगा, इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। सो थैंक यू एंड आई होप दैट यू विल कंप्लीट दिस। थैंक यू।